Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to your physics concept class. Once again, we are in front of each other. From our last few classes, we are discussing about the Gauss theorem and its application. The today's topic is same, but we are going to discuss the problems based on the Gauss theorem and its application. So, be with me till the end of class. Now, we are going to start our class. So, the today's topic is problems based on Gauss theorem. So, let me discuss problem one by one. So, our first problem for today is, the question is, the given figure shows three charges enclosed by a Gaussian surface. What is the flux of electric field through the Gaussian surface if three charges are given? So, according to question, question 1, we have such type of a Gaussian surface. Here we have a charge q1 minus q2 and minus q3, and q1 is given in the question 3 nanocoulomb, and q2 is minus 6 nanocoulomb, and q3 is minus 3 nanocoulomb. So you know that nanocoulomb means 1 nanocoulomb has 10 to the power minus 9 coulomb charge. So we can convert this, and according to question, we want to find the electric flux through this Gaussian surface. This closed surface is the Gaussian surface. So solution is this: the net charge in given Gaussian surface Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, that is 3 plus minus 6 and plus minus 3. This is the minus 6. 3 and 3 is cancelled. Minus 6 nanocoulomb and minus 6 into 10 to the power minus 9 coulomb. So the flux the electric flux is phi E equals to net charge enclosed divided by epsilon naught. This is minus 6 into 10 to the power minus 9 divided by the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. By dividing it, we have the value 6.78 into 10 to the power 2 Newton meter square coulomb. This is the unit. So the first problem is very easy. एक Gaussian surface दिया है, उसमें three charge given थे Q1, Q2 and Q3. One of them is positive and other two are negative. So we want to find the electric flux associated with Gaussian surface. So according to Gauss theorem, the electric flux associated with any surface is 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface. तो पहले हमने क्या किया, नेट चार्ज कैलकुलेट कर लिया और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई. दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो एवरेज की तरह स्क्रीन पोस्ट करके. Now the next problem, question 2. Question 2 is given in the question, 1 coulomb of charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter. So cube is given 1 coulomb, side of cube is 10 centimeter, and calculate the flux coming out of any face of the cube. किसी भी फेस से आने वाली. तो एक क्यूब बनाना है. दिस इज अ क्यूब. इसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसमें जो चार्ज है वो क्यू है जिसकी वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है 1 कोलम है. तो किसी एक फेस से
कमिंग आउट फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमें पता है चार्ज सिमेट्रिकली चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है, तो इसकी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से भी पास होंगी, इससे भी पास होंगी, अपवर्ड भी होंगी, डाउनवर्ड भी होंगी, और बैकवर्ड और फ्रंट वाले सरफेसेस से भी होंगी। तो इन अ क्यूब ओवरऑल देयर आर 6 सरफेसेस, और ये उसका एक फेस से पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, पूरे क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल दें और उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स टोटल क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो एक सरफेस का, मीन्स ओनली दिस ओनली दिस ओनली दिस और ओनली दिस वन अपॉन 6 टाइम हो जाएगा। तो पहले नेट फ्लक्स निकालते हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज फाई ई, और इसको चाहे तो एफ इंडिकेट कर सकते हैं। क्यूब, ये पूरे क्यूब के लिए है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इज गिवन 1, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बट हमें ये कैलकुलेट तो करना नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है एक सरफेस का। अ क्यूब हैज 6 surfaces, hence the flux through any one phase is phi e, और इसको किसके लिए, फेस के लिए यूज करते हैं। एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल का डिवाइड बाई 6 सरफेस होंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 53.1 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर ले तो हमें दिख रहा है ये 1 है, 12 नोमिनेटर में आएगी, प्लस 12 हो जाएगी। अगर इसमें से 2 पावर हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 53.10 इंटू 10⁻10, ये रिमेनिंग आएगा। और ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग होगा, 33 है डिवाइडेड बाई 100 है, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1.88 इंटू 10⁻10, एंड यूनिट ऑफ फ्लक्स इज Newton meter square per coulomb. This is the answer of second problem. Clear? If you have any problem, you can ask me in the comment box. I will solve your problem. So now the next question is, इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे जैसे ऑलवेज करते हैं। Now the third one, next question, problem 3. Third question is a point charge of 100 nanocoulomb. Q is given 100 nanocoulomb, and if a distance 2 millimeter directly above the center of a square of 5 centimeter, the D is 2 millimeter, side of square is 10 centimeter, in the question 5 centimeter, 5 centimeter. What is the magnitude of the electric flux through the square? Electric flux through the square. So इस तरीके का कोई स्क्वायर है, इसकी साइड गिवन है 5 और इससे ठीक 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 मिलीमीटर यहाँ पे एक चार्ज है। तो सबसे पहली बात तो ये गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें सरफेस को क्लोज करना होगा। और ये क्लोज कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया इसी स्क्वायर के ऊपर। इसको अगर हम ABCD सपोज करें तो हमने यहाँ पे ABCD इसके ऊपर एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज क्यूब के इनसाइड हो गया, फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन की सिचुएशन हो गई, क्यूब के इनसाइड हो गया, और क्यूब के इनसाइड हो गया तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और एक फेस, ये स्क्वायर उसका एक फेस हो गया, तो 1/6 टाइम ऑफ द नेट फ्लक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं।
for calculating the electric flux. Through the square, we have to draw Gaussian cube around the charge, and the flux square will be 1/6 times of the net flux of क्यूब. ये कंडीशन हो गई. ये हमें गॉसियन क्यूब ड्रॉ कर लिया. टोटल फ्लक्स इसमें जो भी होगा इस क्यूब का, उसका अगर 1/6 टाइम कर देंगे तो एक स्क्वायर का आ जाएगा, क्योंकि इस सारे के सारे फेस वही स्क्वायर है. इस स्क्वायर के ऊपर ऐसे रखा है स्क्वायर, दो दे तो ऐसे रखे, एक ऊपर रखा, तो इसको कवर अप करके क्यूब बना लिया. और वो जो क्यूब बना है उसके अंदर ये चार्ज आ गया 100 नैनो कूलम. अब इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. तो क्या होगा, देयरफॉर द नेट फ्लक्स कहाँ से, स्क्वायर, जो टोटल होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी 1/6 टाइम हो जाएगा. मीन्स दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. क्यू इज अगेन 100 नैनो कूलम. 100 नैनो मीन्स 10⁻⁹. 6 8.85 into 10⁻⁻12. दैट इज अगर इसमें से हम 100 को फर्स्ट स्टेप कर देते हैं 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 53.10 इंटू 10⁻⁻12. और इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 10⁵ अपॉन 53.10. अब देखा अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 53.10. तो लास्ट प्रॉब्लम में 100 डिवाइडेड बाई 53.10 कितना था, 1.88. तो अगेन उतना ही होगा, पावर चेंज हो गई, 10⁻³ रहती. दिस इज 1.88 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हो रहा है ना. एक स्क्वायर था, उसके ऊपर एक चार्ज था 100 नैनो कूलम का, उसका फ्लक्स इस स्क्वायर पे फाइंड आउट कर रहा था. गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना होगा, तो हमने उसी स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब डेवलप कर लिया 6 सरफेसेस का, और टोटल फ्लक्स निकाल के 1/6 टाइम कर लिया, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं. तो दिस विल बी द आंसर. अगेन यू कैन नोट डाउन दिस. Now the next question, question 5. Question 4. Question 4 is this: the net outward flux through a surface of a cube is 16 kilonewton meter square per coulomb. Phi E 16 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. पहले हम इस 16 किलो न्यूटन को चेंज करेंगे. किलो का मीन्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा. इट इज 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये फ्लक्स हो गया एक क्यूब का. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब. तो सिंपल है, फ्लक्स गिवन है, चार्ज फाइंड आउट करना है. बिकॉज फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू नेट लिख देता हूँ फर्स्ट, इसमें डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. फाई ई इज गिवन 16 इंटू 10⁻³. एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 by multiplying (128) 16 5 88, 16 8 जा 128, 128 and 8 36, 13 remaining, 128 and 13, 138, 141,
141, and after 2 is the point 10 to the power minus 9, and that is 1.416 into 10 to the power minus 7 coulomb of the charge. This is the charge enclosed by the surface. Now the next part is in the second part. Second part of the question is, if the net outward flux is 0, it is correct to say that then where no charge inside the box. अब ये कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि if in the second part if the net flux is 0, ये क्या क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि अगर इस क्यूब से आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो तो क्या ये कहा जा सकता है, इज इट करेक्ट टू से दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द क्यूब. तो अगर फ्लक्स 0 है तो क्या ये कंफर्मली कहा जा सकता है कि क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं था? तो लेट मी टेल यू द आंसर इज नो. हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि गॉस थ्योरम नेट चार्ज पे डिपेंड करती है, ओनली चार्ज पे नहीं. तो ये भी तो पॉसिबल है. ये क्यूब है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज था और एक माइनस क्यू चार्ज था. तो क्यूब के अंदर चार्ज तो है, बट नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. बट हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं है. तो आंसर इज नो. द नेट चार्ज विल बी 0. हम ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज 0 होगा, बट ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं होगा. देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्यूब. So this is the answer of the fourth problem. Now we are moving toward the next problem. इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. वैसे तो इतने बड़े नहीं है, अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हैं. और वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा ऑन पेपर. Now the next question. Next question is an electric flux of minus 100 Newton meter square per coulomb. Phi E equals to minus 100 Newton meter square per coulomb is given. Passes through a surface of 5 centimeter of radius. Radius is 5 centimeter. Given. Centered on a charge. First point, how much electric flux would passes through the surface if the radius is doubled. ये कह रहे हैं कि एक कोई स्पेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, और इससे जो फ्लक्स आउटवर्ड है वो है, आउटवर्ड या इनवर्ड जो भी है, -100 नैनोमीटर ये है. तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, ऐसे 5 की जगह 10 कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इन डायग्राम यू कैन सी, हम रेडियस को 5 से 10 कर दें या 20 कर दें, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, चार्ज तो वही है ना. और जब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो 5 सेंटीमीटर रेडियस में भी चार्ज क्यों ये था, और जब इसको 10 कर देंगे, रेडियस डबल की, चार्ज तो चेंज किया नहीं, तब भी ये उतने रहेगा. तो इट मीन्स रिमेन सेम. तो देयर इज नो चेंज. तो फर्स्ट आंसर इज द फ्लक्स रिमेन same. That is phi E is equals to minus 100 Newton meter square per coulomb, because the flux does not depend upon the area of the closed surface. एरिया पे डिपेंड नहीं करता. ये भी एक रीजन. और दूसरा रीजन, the charge enclosed is same as before. And the second part of the question is find the value of charge inside this. Value of the charge. So the second part, phi E is equals to Q upon epsilon naught. Q equals to phi E into epsilon naught. Phi E is given minus 100 into epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. So this is 8.85 into 10 to the power minus 12 is given. So minus 8.85 10 to the power minus 10 coulomb
if the charge is negative, so negative, this negative sign show that the flux is inward, outward नहीं होगा, inward flux होगा. So the charge is negative. This is the second answer of question.